Hello friends. So today we'll study the constitution of South Africa. In the last previous lectures we already studied the constitution of various different countries: US, UK, Germany, France, Japan, Russia. Now it's time to study South Africa. As you know that some of the features we have borrowed from our South African constitution in Indian constitution. What are the features we have borrowed? Procedure for amendment of constitution. Procedure for amendment of constitution, and another election of members of Rajya Sabha. So these are the features which we have borrowed from South African Constitution. And South African Constitution is there are various similarities between South African Constitution. Differences are less, but similarities are more. And South Africa is also a very big democracy. It's not one of the largest democracy, but the democracy is very strong in South Africa, and that because of the efforts of Nelson Mandela, that he has drafted the constitution, and which actually the fifth constitution, which came into force in 1997. Fifth constitution, which came into force in 1997 by the efforts of Nelson Mandela. He is the pioneer, or you can say, is the father of South African constitution by the efforts of Nelson Mandela. He is also the pioneer to to make to declare apartheid, in which uh, in which the blacks and whites are unsimilarly treated. ठीक है, to declare apartheid है illegal thing, illegal under law. So in the constitution itself, apartheid has been declared illegal. Now what are the similarities? So we can say both in both the countries rule of law prevails. It is the law, no one is above the law, and everyone will get the full protection of the laws. Okay, rule of law, right to equality in both the countries. So everybody is equal under the eyes of the law, and equal subjection of all people to the equal laws. Okay, right to equality, then universal adult suffrage. Okay, giving right to vote to all the citizens of the country who are above the age of 18, or whatever is the age in South Africa. Universal adult suffrage. Right to self determination. So right to self determination is everyone has equal right, or the right to self determine determination of its career, of its life, और which is equivalent to right to life and personal liberty. जो हमारा आर्टिकल 21 है उसके इक्वलेंट है ये. देन कोऑर्डिनेशन between political system and security forces. इसके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिक्योरिटी फोर्सेस, पहले क्या था, सिक्योरिटी फोर्सेस जो थे वो दे डजंट कम अंडर द पॉलिटिकल सिस्टम, बट नाउ आफ्टर दिस फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशन इज ड्राफ्टेड, is a strong coordination between both the system, political as well as security forces, and security forces come under the political system. Then anti-racialism, which I have already said कि racial को यानी कि अपार्थाइड को इलीगल डिक्लेयर कर दिया. एंटी-रेशियलिज्म itself in the constitution. And
सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, है ना, सेपरेशन ऑफ पावर्स, बहुत की सिमिलैरिटीज की बात कर रहे हैं, पावर्स की सेपरेशन है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। देन नेशनल डेमोक्रेसी, रेगुलर इलेक्शंस, डेमोक्रेसी है वहां पे, रेगुलर इलेक्शंस है, वहां पे है बिल ऑफ राइट्स, यहाँ पे है फंडामेंटल राइट्स, यहाँ पे है फंडामेंटल राइट्स, वहां पे है बिल ऑफ राइट्स। ओके, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, टू प्रमोट कल्चरल डाइवर्सिटी, ये सब ऐसे पॉइंट्स हैं विच आर सिमिलर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट आर द डिफरेंसेस? तो आप देख रहे हैं कि साउथ अफ्रीकन डेमोक्रेसी भी लगभग सिमिलर है इंडियन डेमोक्रेसी के, बट डिफरेंसेस भी हैं उसके साथ कुछ। अच्छा, यहाँ भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है और वहां भी साउथ अफ्रीका में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट। डिफरेंसेस इंडिया साउथ अफ्रीका, हमारे यहाँ राइट टू वोट, दैट इज अ लीगल राइट, बट वहां पे फंडामेंटल राइट है, राइट टू वोट, FR मेंशन्ड इन द बिल ऑफ राइट इटसेल्फ। राइट टू प्रॉपर्टी हमारे यहाँ तो लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया, वहां पे फंडामेंटल राइट है। हमारे यहाँ फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम है, जो हम पार्लियामेंट के मेंबर्स चुनते हैं, वहां पे पार्टी लिस्ट सिस्टम है, विच इज अ टाइप ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। FPTP में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। FPTP सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच that person will be declared as elected who gets the majority of the votes in the constituency। while पार्टी लिस्ट सिस्टम में क्या होता है, लिस्ट होती हैं, अलग अलग लिस्ट, पार्टीज अपनी अपनी लिस्ट देते हैं, उसमें मल्टीपल कैंडिडेट्स हो सकते हैं और सिंगल भी हो सकता है, डिपेंड करता है कितने कैंडिडेट्स चुनने हैं आपको किसी पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी में। तो पार्टी अपनी लिस्ट देती है कैंडिडेट की किसी कंस्टिट्यूएंसी में, तो बंदा पार्टीज को वोट देता है, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है तो बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ द वोट्स दैट पार्टी सिक्योर्स, ओके, that party will get this representation in the parliament। and इसमें पार्टी को वोट जाता है, बट इसमें अगर आपको प्रेफरेंस देनी है कैंडिडेट्स को भी, वो ओपन इसमें अलग अलग होते हैं, क्लोज्ड और ओपन। क्लोज्ड में तो प्रेफरेंस नहीं दी जाती, पार्टी अपने हिसाब से जो टॉप कैंडिडेट होता है इन दी लिस्ट उसको रिप्रेजेंटेशन देती है। अदरवाइज ओपन में कैंडिडेट्स को भी प्रेफरेंस देता है वोटर। तो कैंडिडेट्स जितना मान लो 10 कैंडिडेट्स चुनने हैं पार्टी ए को, तो प्रेफरेंस भी दी गई है कि कैंडिडेट ए को, कैंडिडेट बी को, कैंडिडेट सी को, तो उसके ऊपर भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, और बेस्ड ऑन दी नंबर ऑफ सीट्स विच ईच पार्टी सिक्योर्स
उतने कैंडिडेट्स को वहाँ पे चुन के भेजा जाता है. So this is a party list system, a type of proportional representation. हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वहाँ पे प्रेसिडेंट होते हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टेरियल सिस्टम, और वहाँ पे प्रेसिडेंशियल, प्रेसिडेंट को पावर्स होती है वहाँ पे ज़्यादा. बट प्रेसिडेंट जो होता है वो पार्लियामेंट का ही मेंबर होता है इन साउथ अफ्रीका, बट यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर होता है पार्लियामेंट का मेंबर. तो ये एक डिफरेंस है इन इंडिया एंड साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन. सो मोटा मोटा आपको बहुत ज़्यादा अंदर मतलब ज़्यादा डिटेल्स पता होने की इतनी आवश्यकता नहीं है. तो ये पता होना चाहिए व्हाट आर दी 2 फीचर्स वी आर बोरोड फ्रॉम साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन. इसके अलावा व्हाट आर दी डिफरेंसेस. सो दीज आर दी डिफरेंसेस: वोट, राइट टू प्रॉपर्टी, एंड FPTP है, वहाँ पार्टी लिस्ट सिस्टम है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. वी हैव द प्राइम मिनिस्टर हेयर, देयर इज द प्रेसिडेंट. रेगुलर इलेक्शन हमारे यहाँ भी होते हैं, वहाँ भी होते हैं, वो सिमिलैरिटी है. एंड देयर इज ऑल्सो वन ऑफ द डिफरेंस, एक और डिफरेंस है वहाँ पे इंडिया और साउथ अफ्रीका में. इंडिया में राइट टू इंफॉर्मेशन एक लीगल राइट है, while their right to information also एक फंडामेंटल राइट है. एक ये और डिफरेंस है. इंडिया में राइट टू इन्फॉर्मेशन आप जानते हैं 2005 के एक्ट के माध्यम से लाया गया था, बट वहाँ पे फंडामेंटल राइट है, यानी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है. तो दीज आर दी मेजर डिफरेंसेस. और एक पॉइंट और है इंडियन और साउथ अफ्रीका कि वहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम. इन इंडिया ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम. कॉन्स्टिट्यूशन से ही सारी अथॉरिटी डराइव होती है ना, सारी अथॉरिटी. सो राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल डराइव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन. देयर ऑल्सो द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल डराइव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका. ठीक है. एंड so these are the differences and similarities in Indian and South African constitution. In the next lecture we will study the Canadian, that is very important, Canadian constitution. Thank you very much. Till wait for the next lecture. Thank you.